أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار
له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 264۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا نہ تم ضائع کرو، نہ برباد کرو، صدقاتکم اپنے صدقات کو، بالمن احسان جتلا کر، والاذی اور تکلیف دے کر۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہے، کالذی اس شخص کی طرح ہے، ينفق جو خرچ کرتا ہے، مالہ اپنے مال کو، رئاء الناس جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھلانے کے لیے، دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، ولا یؤمنون اور نہ ہی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، فمثلہ پس اس کی مثال، کا مثلی ایسی مثال ہے، صفوان ایک صاف پتھر ہے، علیہ تراب اس پر مٹی پڑی ہوئی ہے، گرد و غبار پڑا ہوا ہے، فاصابہ وابل پھر اس پر زوردار بارش برس جاتی ہے، وابل مینا برسنے کو کہتے ہیں، موسلا دھار بارش برسنے کو کہتے ہیں، فترکہ صلدا تو وہ بارش سے وہ پتھر کے اوپر جو مٹی پڑی ہوئی تھی وہ چلی جاتی ہے، وہ پتھر صاف ہو جاتا ہے۔ یعنی کوئی شخص اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتا ہے اور پھر احسان جتلا کر یا تکلیف پہنچا کر اسے وہ ایسے ضائع کر لیتا ہے جیسے پتھر کے اوپر مٹی پڑی ہو اور اس مٹی سے وہ پتھر چھپا ہوا ہے، لیکن بارش برسنے کے بعد وہ مٹی بہہ گئی اور وہ چٹیل واضح پتھر نظر آنے لگا۔ اسی طرح انسان کے نامہ اعمال سے بھی وہ نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، وہ صاف ہو جاتا ہے۔ لا یقدرون وہ قدرت نہیں رکھتا ہے، علی شیء کسی بھی چیز پر، مما کسبوا جو اس نے کمائی ہے وہ اس کے ہاتھ نہیں لگی، کچھ بھی اس کے ہاتھ نہیں آیا، سب ضائع ہو گیا۔ واللہ اور اللہ تعالی لا یہدی وہ ہدایت نہیں دیتا ہے، القوم الکافرین کافر قوم کو۔ اس کی ریاکاری خود ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ اور آخرت پر یقین نہیں رکھتا۔ اس کا محض لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا صریحاً یہ معنی رکھتا ہے کہ خلق ہی اس کی خدا ہے، یعنی دنیا کی مخلوق ہی اس کی خدا ہے جس سے وہ اجر چاہتا ہے۔ اللہ سے نہ اس کو اجر کی توقع ہے اور نہ اسے یقین ہے کہ ایک دن اعمال کا حساب ہوگا
और अजर अता किए जाएंगे। और फिर इस आयत के अंदर जो मिसाल बारिश से मुराद जो दी गई है वो खैरात है, और चट्टान से मुराद उस नीयत और उस जज्बे की खराबी है जिसके साथ खैरात की गई है। मट्टी की हल्की तह से मुराद नेकी के वो जाहिरी शक्ल है जिसके पीछे नीयत की खराबी छुपी हुई है। इस वजाहत के बाद मिसाल अच्छी तरह समझ में आ सकती है। बारिश का फिक्री इक्तिजा फितरी तौर पर तो यही है कि उससे रोएदगी हो और खेती नशोनुमा पाए, लेकिन जब रोएदगी कबूल करने वाली जमीन सिर्फ बराए नाम ऊपर ही ऊपर हो और उस ऊपर वाली तह के नीचे निरी पत्थर की एक चट्टान रखी हुई हो, तो बारिश मुफीद होने की बजाय उल्टी नुकसानदेह होगी। इसी तरह खैरात भी अगरचे भलाइयों को नशा नुमा देने की कुव्वत रखती है, मगर उसके नाफे होने के लिए, फायदामंद होने के लिए हकीकी नेक नियति शर्त है। नियत नेक ना हो तो अब्रे करम का फैजान बजुज इसके कि सिर्फ माल का ज़िया है और कुछ भी इंसान के हाथ नहीं आएगा। और यहाँ काफिर लफ्ज न शुक्र और मुनकर नेमत के माना में इस्तेमाल हुआ है। वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन जो आया है कि जो शख्स अल्लाह की दी हुई नेमत को उसकी राह में उसकी रजा के लिए खर्च करने की बजाय लोगों की खुशनुदी के लिए खर्च करता है, या अगर अल्लाह की राह में कुछ माल देता भी है तो उसके साथ अजियत भी देता है, तकलीफ भी देता है, वो दरअसल ना शुक्रा और अपने अल्लाह का एहसान फरामोश है। और जबकि वो खुद ही खुदा की रजा का तालिब नहीं है तो अल्लाह उससे बेनियाज है कि उसे खामखा अपनी रजा का रास्ता दिखाए। आयत नंबर 265। व मसलुल्लज़ीना और मिसाल उन लोगों की युनफिकूना जो खर्च करते हैं अम्वालहुम अपने मालों को इब्तिगा चाहने के लिए, हासिल करने के लिए, मरज़ातिल्लाही अल्लाह की रजा को। जो लोग अल्लाह की रजा के लिए माल खर्च करते हैं, व तस्बीतम मिन अनफुसिहिम दिल की खुशी के लिए, तस्बीतन मिन अनफुसिहिम अपने दिल की तसल्ली और सुकून के लिए, कि वो चाहते हैं कि जब हम अल्लाह की राह में खर्च करेंगे तो हमारे दिलों को सुकून मिलेगा। यकीनन मिलता है जब इंसान किसी की मदद करता है। तो उनकी मिसाल कैसी है? कमसली, उनकी मिसाल जन्नतिन ऐसे बाग की है, बिरबवतिन असाबहा जो ऊंची जमीन पर है, वाबिलुन और उस पर मूसलाधार बारिश बरसती है, फ़आतत उकुलहा ज़िअफ़ैन तो उससे उसका फल दुगना आ जाता है, उसके फल में वुसअत आ जाती है। फ़इल्लम युसिबहा और अगर उस पर बारिश न पड़े, वाबिलुन फतल तो उसके लिए फवार ही काफी है। वल्लाहु और अल्लाह ताला बिमा तामलूना जो कुछ भी तुम करते हो बसीर वो उसे देख रहा है। यानी जोर की बारिश से मुराद वो खैरात है जो इंतहाई जज्बा खैर और कमाल दर्जे की नेक नियति के साथ की जाए, और एक अलकी फवार से मुराद ऐसी खैरात है जिसके अंदर जज्बा खैर की शिद्दत हो। यानी इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उस शख्स की मिसाल दी है जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है अल्लाह की रजा के लिए, ना वो एहसान जितलाता है और ना ही वो लोगों को दिखाता है। तो उसकी मिसाल उस बाग की दी है जो ऊंची जगह पर हो और बारिश से उसका फल दुगना हो जाए, और अगर थोड़ी सी भी बारिश पड़े तो तब भी उससे उसका काम चल जाता है। आयत नंबर 266। आयावद्दु
अहदुकुम, क्या तुम में से कोई शख्स ये चाहता है, क्वेश्चन मार्क होता है, क्या चाहता है, अहदुकुम तुम में से कोई एक, अन तकून लहू जन्नतुन, कि उसके लिए एक बाग हो। यानी अल्लाह ने हमसे सवाल किया है कि क्या तुम में से कोई शख्स ये चाहता है कि उसका एक बाग हो, मिन नखीलिन, जिसमें खजूरों के दरख्त हों, व आनाबिन, और अंगूरों के बाग हो, दरख्त हों, तजरी मिन तहतिहल अन्हार, जिसमें नहरें भी बह रही हों, लहू फीहा, उस जन्नत के अंदर, मिन कुल्लि समरात, हर किस्म का फल हो, व असाबहुल किबरु, और वो बुढ़ापे को पहुंच चुका हो, वलहु ज़ुर्रियतुन ज़ुअफ़ा, और उसकी औलाद भी अभी छोटी हो, छोटे हों, बच्चे हों उसके, और वो खुद बूढ़ा हो चुका हो, फ़असाबहा इअसारुन, उसका इतना खूबसूरत बाग हो कि जिसके अंदर खजूरों के दरख्त हों, अंगूरों के दरख्त हों, और उसके नीचे से नहरें बहती हों, और इसके अलावा भी सारे फल हों, और वो खुद भी बूढ़ा हो चुका हो, और उसके बच्चे अभी काम काज के काबिल ना हो, फ़असाबहा इअसारुन, अचानक बाग को आग लग जाए, फीही नारुन, एक ऐसा बगोला आए जिसमें आग हो, फहतरकत, तो वो उसे जलाकर राख कर दे। कज़ालिका, इसी तरह, युबय्यिनुल्लाहु, अल्लाह बयान करता है, लकुम, तुम्हारे लिए, अल आयाती, अपनी आयात को, लअल्लकुम ततफक्करून, शायद कि तुम गौर फिक्र करो। यानी अगर तुम ये पसंद नहीं करते कि तुम्हारी उम्र भर की कमाई ऐसे नाजुक मौका पर तबाह हो जाए जबकि तुम उससे फायदा उठाने के सबसे ज्यादा मोहताज हो, और नए सिरे से कमाई करने का मौका भी बाकी ना रहा हो, तो ये बात तुम कैसे पसंद कर रहे हो कि दुनिया में मुद्दतुल उम्र काम करने के बाद आखिरत की जिंदगी में तुम इस तरह कदम रखो कि वहां पहुंचकर अचानक तुम्हें मालूम हो कि तुम्हारा पूरा कारनामा हयात यहां कोई कीमत नहीं रखता। जो कुछ तुमने दुनिया के लिए कमाया था वो दुनिया ही में रह गया, आखिरत के लिए कुछ कमा कर लाए ही नहीं कि यहां उसका फल खा सको। वहां फिर इसका मौका नहीं मिलेगा कि इंसान नए सिरे से आखिरत के लिए कमाई करे। आखिरत के लिए काम करने का जो कुछ भी मौका है इसी दुनिया में है। यहां अगर तुम आखिरत की फिक्र किए बगैर सारी उम्र दुनिया ही की धुन में लगे रहे और तमाम अपनी कुव्वतें और कोशिशें दुनियावी फायदे तलाश करने ही में खपाते रहे, तो आफताबे जिंदगी के गुरूब होने पर तुम्हारी हालत बेआईन ही उस बुड्ढे की तरह हसरतनाक होगी जिसकी उम्र भर की कमाई और जिसकी जिंदगी का सहारा एक बाग था, और बाग ऐन आलम पीरी में यानी बिल्कुल आखिरी उम्र में उस वक्त जल गया जबकि ना तो वो खुद नए सिरे से बाग लगा सकता है और ना ही उसकी औलाद इस काबिल है कि उसकी कोई मदद कर सके। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।